So I have invited all of you. After exam, still the strength reached only 60, and I'm taking two sections together. And those who have book, please open, because we are going to start our first chapter of civics. So the chapter is, or the topic is, democracy and equality. The topic name is democracy and equality. And for before I'm going to start this topic, I'll ask some questions from you regarding the democracy, because this topic is already familiar with you, democracy and equality. So just give me 1 second. Okay. So this topic is already familiar, democracy and equality. And if you want to make it more clear, you can open your book of social science, first chapter of civics, democracy and equality. And so for this, for the introduction of the chapter, what is democracy and what is equality, I'll ask the answer from you. So I'll okay, I'll unmute Diksha Chaudhary. Diksha, are you able to listen? Sirjan is raising the hand, so I'll ask from Sirjan also. Diksha, are you able to listen? No? Ma'am, can you repeat the question? Okay. Diksha, are you able to listen? Yes, ma'am. I have not asked the question yet. Okay, so please tell me the exact meaning, or what do you mean by democracy? Diksha, what do you mean by What? democracy? What do you mean by democracy? Yeah. What do you mean by democracy? What is democracy? Ma'am, your voice is not clear. Okay, I'll ask from Sirjan. Sirjan, are you able to listen? Yes, ma'am. Sirjan, what is democracy? Ma'am, democracy is a system in which the government of a country is elected by the people. Yes, very nice. And something you want to add more? More. When the government run by the people of the country, it is democracy. So you can say like this: democracy is a government of the people, for the people, and by the people. Okay? Yes, ma'am. Okay, so democracy is a government of the people, for the people, and by the people. By the लोगों की ही गवर्नमेंट होती है, लोगों के द्वारा ही इलेक्ट की जाती है, और लोगों के लिए ही होती है. अंडरस्टूड? बिकॉज लोग ही गवर्नमेंट में होते हैं, जो पीपल हैं वही लोग गवर्नमेंट में भी आते हैं, और लोगों से के द्वारा ही उसको इलेक्ट किया जाता है. जो गवर्नमेंट में आते हैं उनको इलेक्ट कौन करता है? हम लोग ही करते हैं. एंड ये किसके लिए गवर्नमेंट बनाई जाती है? हमारे लिए ही बनाई जाती है. सो थ्री phrases you can say, three phrases इसमें आते हैं: by the of the people, for the people, and by the people. So democracy, I think you understood the exact meaning of the democracy. And next we have equality. So it is very important in democracy, because democracy तब होगी जब equality exist करेगी. And without equality, democracy has no value. Okay, so if we want democracy in any country, that means in that country equality also exists. Because equality होगी तभी तो हम बोलेंगे ना कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है. अगर इक्वालिटी नहीं होगी तो डेमोक्रेटिक, उसका उसका नाम डेमोक्रेटिक कंट्री जो है वो यूजलेस है. नो वैल्यू. डेमोक्रेसी की कोई वैल्यू नहीं है बिना इक्वालिटी के.
So I'm going to mute you first. Then I'll ask from the meaning of equality from uh, meaning of equality. Just give me some second. Arshdeep Kaur. Arshdeep, are you able to listen? Yes, ma'am. Arshdeep, what is equality? Ma'am, equality means when someone gets the equal right to Yes. do something or go to some place or education. Yes, you can say equal opportunities, equal access to all facilities. Okay. When we will Okay, get ma'am. equal opportunities, equal chances on all facilities, जितने भी facility हैं सब पे हमें equal access मिलेगा, equal opportunities मिलेंगी, that means it is a equality in home, in public places or outside our country. When we will get equal access, access means equal, you can say right, equal right मिलेंगे, that is equality. So very nice. Now I'm going to mute you. So our topic is democracy and equality. It is very interesting topic than history. So because you are learning the civics and civics is the present day. ये हमारी society के बारे में है and it is very important to learn about the society कि अभी आजकल society में क्या चल रहा है. Equality मिल रही है सबको? No, because of the quarantine also that the COVID-19 जो हमारा ये चल रहा है. So due to this, no one get the equal access on all facilities. सबको equal access नहीं मिल रहा है, सबको equal opportunities नहीं मिल रही हैं because उनको on food, on job और other आप देख रहे हो जो भी ये जो भी laborers हैं, मजदूर हैं, उनके साथ क्या क्या हो रहा है. तो उनको equal facilities मिल रही हैं? No, because democracy तो है इंडिया में, but they want, उनको मिलनी चाहिए, they should get, उनको जरूर मिलनी चाहिए equal facilities, but they are not getting. So here I'm going to share a next screen. We'll just see. Okay, so for this equality, we need democracy, and first of all, equality in a democracy. How equality exists in a democracy? Because you already know the meaning of democracy. When we will get all type of rights, all facilities, हम उसको बोलते हैं democracy. And India is also a democratic country. So in we will talk about the India only uh, as a democratic country. कि India में क्या democracy really exists or not? In India, democracy really exists or not? कि अगर डेमोक्रेसी है तो क्या सबको इक्वालिटी मिल रही है? डेमोक्रेसी का मीनिंग है इंडिया में? अगर है दैट मीन्स इक्वालिटी होनी चाहिए, और अगर डेमोक्रेसी का मीनिंग ही नहीं है दैट मीन्स इंडिया में कहीं ना कहीं इनइक्वालिटीज हैं. इनइक्वालिटीज इन द फॉर्म ऑफ कास्ट सिस्टम है, कास्ट सिस्टम इंडिया में है. इनइक्वालिटी इन द फॉर्म ऑफ इनकम है, some are poor, some are rich. So the essence of democracy is equality. You can say like this कि जो सेंस है डेमोक्रेसी का, जो वैल्यू है डेमोक्रेसी की, वो इक्वालिटी ही है. सो इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, फर्स्ट ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने का जो एक एम है, एक पर्पस है, वो है सबको क्या मिले? राइट टू वोट. ओके, तो फैसिलिटीज तो बाद में मिलनी है ना, सबसे पहले तो हमें गवर्नमेंट बनानी है. तो वैसे गवर्नमेंट होगी तो हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, बट अगर गवर्नमेंट ही नहीं होगी अच्छे से तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज कैसे मिलेंगी? तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, जो फर्स्ट फीचर है डेमोक्रेसी का, वो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. सो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जस्ट गिव मी 1 second. Yes, universal adult franchise, and the new term is universal adult suffrage. So the term is same, franchise suffrage is same. That means when every citizen in India or in any country get equal right to vote, and it is above 18 years, not below 18 years. 18 years के बाद जब सबको right है वोट डालने का, that means that country is a democratic country. तो हमारे इंडिया में तो ये फीचर जो है ये एग्जिस्ट कर रहा है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का.
हमारे इंडिया में ये फीचर है बिकॉज सबको 18 ईयर्स के बाद वोट डालने का जो है वो राइट है, एंड दिस इज नोन एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. So universal adult franchise ensure that all people are treated equally and all adults exercise their voting rights to cast their vote, whether कि वो कोई बैकवर्ड एरिया से है, पुअर पीपल है, इलिटरेट है, तो सबको क्या है, राइट है वोट डालने का. तो ये तो नहीं है कि वो कहीं वोट वोट डालने जाते हैं तो दे आर डिनाइड, उनको मना किया जाता है, वोट नहीं डालने दिया जाता है. नो, इन इंडिया ऑल हैव द इक्वल एक्सेस और इक्वल राइट टू or right of vote. So, and if we want to see that after adult franchise, which type of inequalities are there? Universal adult franchise तो है, but inequality कहाँ exist कर रही है? So the form of inequality is, the first form of inequality is the uh, you can say class system. Class system means poor and rich people. तो हमारे इंडिया में class system exist कर रहा है. Poor and the rich peoples exist in the form of their income earned by them. So reason जो है वो है उनकी income का, कि कुछ लोग poor हैं and कुछ जो हैं वो rich हैं. तो इससे हम बोल सकते हैं कि उनको equal opportunities नहीं मिलती हैं. Poor के बीच में जो डिफरेंस है उसकी वजह से उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं. सो द नेक्स्ट फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी वी हैव, just give me some second for share a screen. Yes. So the next form of inequality is the caste system. So it is very important. First inequality I already told you, that is class system. Class system means some are rich and some are poor, and it is based on their income earned by them. उनकी इनकम के ऊपर बेस है उनकी अपॉर्चुनिटीज. एंड द सेकंड इज कास्ट सिस्टम. एंड कास्ट सिस्टम यू ऑलरेडी नो दैट सम आर पीपल आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क इन इंडिया. उनके काम के ऊपर उनको कास्ट सिस्टम जो है ये प्रेजेंटली नहीं बना है. ये इन ड्यूरिंग प्रिमिटिव टाइम, एंशियंट टाइम, तब से ये बना हुआ है. एंड ये तो नहीं था कि उनको बाय बाय फ्रॉम देयर बर्थ दे गॉट देयर कास्ट. नो, उनको बर्थ से नहीं मिला है, ये उनके काम से, उनके सर्विसेज से मिला है. बिकॉज इन एंशियंट टाइम व्हेन देयर वाज इन इंडिया देयर वाज किंग रूल. So king has divided the work among their people. So king ने ही जो था वो क्या किया था, उनका काम जो था वो डिवाइड किया हुआ था. And some got their cleaning services, some got their household activities, some got their fighting activities, you can say. तो उनके बेसिस के ऊपर some got their worshipping activities. तो जो worship करते थे, they include in their Brahmin caste. Okay, and the second we have Kshatriya caste, जो कि warriors थे, जो king के साथ fight के लिए जाते थे. Then the third one we have Vaishya class. Vaishya means merchant, landowners, जो कि markets चलाते थे, जो goods को, things को sell करते थे. And the fourth one we have Shudra class. Shudra class means we have commoners, peasants, servants. Servants भी उसी में आते हैं जो उनके घर का काम करते थे. Okay, and the fifth one we have untouchables. And the untouchables are street sweepers. Servants not in शूद्रास जो थे वो उनके घर के सर्वेंट्स होते थे, उनके पैलेस के सर्वेंट्स होते थे. बट अनटचेबल्स वर फ्रॉम the street sweepers, latrine cleaners, and the out of caste, you can say like this, जो कि बाहर का काम करते थे. So this in this way the caste the people were divided into caste. So caste system also still also exist in India. अभी भी है. आप ये नहीं बोल सकते हो कि caste system is not in India. So the very important is the the scheduled caste or Dalits have long been treated unequally. Even today, in many places in India, they are denied access to facilities like potable water, temples, education, and employment. तो अभी भी जो बैकवर्ड एरिया हैं या विलेज एरिया हैं, जो टाउन्स नहीं हैं, जो सिटीज नहीं हैं, उनमें भी अभी तक कास्ट सिस्टम जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है. तो द वेरी फर्स्ट जो एक
यू कैन से कि एक कोड जो है वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, फादर ऑफ आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर हैं, उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया है, कंपोज किया है. सो ही बिलीव्ड इन इक्वालिटी एंड ही आउटलाइन हिज विजन ऑफ एन आइडियल सोसाइटी, बिकॉज उन्होंने भी इक्वालिटी के बारे में लिखा है. माय आइडियल वुड बी अ सोसाइटी बेस्ड ऑन लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. तो उन्होंने कहा था कि अगर मैं हूँ तो मेरा जो आइडल है सोसाइटी को बनाने का वो है कि सोसाइटी में लिबर्टी हो, इक्वालिटी हो एंड फ्रेटर्निटी हो. तो इक्वालिटी यू ऑलरेडी नो, इक्वालिटी मीन्स बीइंग इक्वल. ओके, यस. सो equality means being equal. Fraternity means friendship and mutual support within a group. Friendship and mutual support. फ्रेटर्निटी में आप ब्रदरहुड भी बोल सकते हो. ओके, फ्रेंडशिप और ब्रदरहुड, जब आपस में भाईचारा होगा, यूनिटी होगी सबके साथ, दैट इज फ्रेटर्निटी. इक्वालिटी होनी चाहिए, फ्रेटर्निटी मीन्स यूनिटी होनी चाहिए. एंड द थर्ड वन वी हैव लिबर्टी. लिबर्टी मीन्स फ्रीडम. ओके, इक्वालिटी, यूनिटी एंड फ्रीडम. तो यूनिटी को एक न्यू टर्म दिया गया है, फ्रेटर्निटी. सो these three terms are very much important in India, and these three terms is given by Dr. B.R. Ambedkar. So I have already told you that caste system is in India, class system is in India. So what we have to now I'm going to explain about the gender inequality and religious inequality. तो कास्ट सिस्टम जो था वो आपने पढ़ लिया, कास्ट सिस्टम के बेस पे कैसे इनइक्वालिटी आती है, क्लास सिस्टम के बेस पे कैसे आती है. नाउ जेंडर इक्वालिटी एंड रिलीजियस इनइक्वालिटी. So these play an important role in determining whether or not people are treated equally. So we must remember that all individuals are equal. They deserve to be given the same respect and dignity, whether they are females or males. तो सबकी dignity, सबका जो एक respect है, तो we all have to they deserve to be given the same respect and dignity as the other members of the society. And unequal treatment not only violates their dignity but also puts them through mental agony. So उनका जो है, अगर हम inequality उनसे जो है वो equal ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, दैट मीन्स उनकी डिग्निटी, उनकी रिस्पेक्ट तो वायलेट हो रही है, उनकी रिस्पेक्ट तो डाउन हो रही है, बट ऑल्सो दे सफर फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर्स. आपने ये काफी न्यूज में देखा होगा कि जिनके साथ इनइक्वालिटी होती है उनको उनकी रिस्पेक्ट तो जाती है, साथ में उनको मेंटल डिसऑर्डर्स भी हो जाते हैं. तो फिजिकली एज वेल एज मेंटली दे वायलेट. So next we have, just give me some second for the share screen. You just see, yes. So Indian Constitution, the Indian Constitution recognizes every persons as equal and every individual in the country, including male or female. So the purpose behind this share screen के आपको पता चले कि मेल फीमेल में भी जो है वो inequalities होती हैं, gender inequality आप उसको बोलते हो. So this is mentioned in our constitution that every individual in our country, including male or female, from all caste, religion, tribes, education, and economic background, are recognized as equal. So हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो सबको इक्वल माना गया है, मेल फीमेल को. रिलीजन्स जो सिखिज्म है, हिंदुइज्म है, क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, तो कोई भी रिलीजन जो है वो डाउन नहीं है. तो सबको एक जो टॉप मोस्ट पोजीशन दी गई है. देन एजुकेशन के बेस पे कोई इलिटरेट या लिटरेट नहीं होगा, सबको इक्वल एक्सेस दिया जाएगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी. ट्राइबल पीपल मीन्स जो बैकवर्ड एरिया में रहते हैं उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जानी चाहिए. एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड मीन्स क्लास सिस्टम, उनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा है, रिच है या पुअर है, बट दे शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी.
इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द फॉर्म ऑफ जस्टिस आप बोल सकते हो। अगर किसी के साथ कोई क्राइम होता है, कोई किसी के साथ कुछ गलत करता है, तो ये नहीं देखना है कि वो फीमेल है, ये नहीं देखना है कि वो बैकवर्ड एरिया से है, तो सबको जस्टिस मिलना चाहिए, सबको अपॉर्चुनिटी भी मिलनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर वो बैकवर्ड एरिया से है और हम सिटी एरिया से हैं, तो ये तो नहीं है कि जॉब मुझे ही मिलनी चाहिए, मे बी दे डिजर्व वेल, सो ज्यादा डिजर्व करते हो। So in our country there are laws to protect people from discrimination and ill treatment. So हमारी कंट्री में laws बने हुए हैं जो कि इनको क्या करते हैं, वायलेट करते हैं, जो हमारे राइट्स को हमें नहीं देते हैं, हमारे राइट्स को वायलेट करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन होती है, हमारे साथ इल ट्रीटमेंट होता है, हॉस्पिटल्स में होता है, हमारा कोई चेकअप नहीं करता है, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, बिकॉज ऑल शुड हैव टू गेट इक्वल राइट्स। तो पुअर है या रिच पीपल है, सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए हॉस्पिटल में। तो अगर ऐसा नहीं होता है तो उनके लिए क्या बने हुए हैं, लॉज, तो दे विल गेट पनिशमेंट फ्रॉम द यू कैन से फ्रॉम द लॉ। सो नेक्स्ट, जस्ट गिव मी सम सेकंड। यस, सो in our country government is responsible to the people because our country is a democratic country, India is a democratic country, and our government is responsible to the people। कुछ भी होता है गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर हमारे साथ कुछ भी इनजस्टिस होता है, पुलिस वाले करते हैं, डॉक्टर्स करते हैं, या नेबर्स करते हैं, so government is responsible। गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल बिकॉज गवर्नमेंट को किसने इलेक्ट किया है, पीपल ने। डेमोक्रेसी इंश्योर्स लिबर्टी एंड इक्वालिटी, एंड क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि डेमोक्रेसी में लिबर्टी और इक्वालिटी दोनों मिलनी चाहिए, और अगर हमें नहीं मिलती है देन गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल। एंड गवर्नमेंट इज यूजुअली स्टेबल। स्टेबल मीन्स कि वो ये नहीं कर सकती है कि अपने डिसीजंस को चेंज नहीं कर सकती है, स्टेबल है। डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। सो डेमोक्रेसी से हमारा जो डिसीजन मेकिंग का क्वालिटी है वो इम्प्रूव होता है। हाउ, कैसे होता है, बिकॉज डेमोक्रेसी होगी तो डिसीजन जो है लोगों को ध्यान में रख के लिए जाते हैं, सो उनकी क्वालिटी जो है वो चेंज होती है। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। तो डेमोक्रेसी में मेथड्स जो हैं वो दिए जाते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स और डिफरेंसेस को डील करने के लिए। कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं झगड़े। अगर किसी, फॉर एग्जाम्पल जम्मू एंड पंजाब में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तो डेमोक्रेसी के पास उसके सोल्यूशंस भी होते हैं। अगर डेमोक्रेसी है तो सोल्यूशंस होने चाहिए। नेक्स्ट वन, डेमोक्रेसी गारंटीज फ्रीडम टू ऑल सिटीजन। तो हमें फ्रीडम भी होनी चाहिए, फ्रीडम इन द सेंस कि हम अपने स्टेट से बाहर जा सकते हैं, हम अपनी कंट्री से बाहर जा सकते हैं, सो वी ऑल शुड गेट फ्रीडम इन डेमोक्रेसी। सो द प्रोविजंस in the Indian Constitution and the Article 15 of the Indian Constitution makes provision to treat people equally with dignity. You can write, if you have a notebook, please write down कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें हमें इक्वालिटी के बारे में हमें डिस्क्रिप्शन दी गई है। तो आर्टिकल नंबर 15 आर्टिकल 15 of the Indian Constitution make provisions to treat people equally and with dignity। तो लोगों को इक्वली ट्रीट करना है और डिग्निटी मीन्स रिस्पेक्ट से उनको ट्रीट करना है, ये आर्टिकल 15 में लिखा गया है। एंड देयर आर मेनी प्रोविजंस इन आर्टिकल 15। द फर्स्ट इज prohibition of discrimination on ground of religion, race, caste, sex और place of birth। तो आर्टिकल 15 में इक्वालिटी है, तो इक्वालिटी में सारी तरह की इक्वालिटीज आएंगी, ऑल इक्वालिटीज बेस्ड ऑन रिलीजन, बेस्ड ऑन सेक्स मीन्स फीमेल एंड मेल, जेंडर भी आ जाएगी, देन रेस मीन्स हम ट्राइबल रेस से हैं या कहाँ किस रेस के हैं, देन प्लेस हम हमारा बैकवर्ड एरिया है या सिटी एरिया है, तो ऑल टाइप ऑफ इक्वालिटी। तो आर्टिकल 15 प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन होता है डिफरेंसेस, तो जो जो डिफरेंस करता है उसको प्रोहिबिट करता है आर्टिकल 15। ओके, प्रोहिबिट मीन्स उसको खत्म करता है। सो इन दिस आर्टिकल, आर्टिकल 15 के अंडर आर्टिकल 15 के फीचर्स क्या हैं, तो इन योर क्वेश्चन आंसर्स यू विल गेट राइट डाउन द फीचर्स ऑफ आर्टिकल 15 इन आर और ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 15 के फीचर्स क्या हैं, आर्टिकल 15 है तो इक्वालिटी का, बट उसके फीचर्स क्या हैं। फर्स्ट फीचर इज नो डिस्क्रिमिनेशन,
against religion, caste, sex, place of birth. So second feature is no citizen on ground only of religion, race, caste, sex, place of birth, or any of them be subject to any disability, liability, restriction, or condition with regard to. And regard to means access to shop, public restaurants, hotels, and places of public entertainment. तो कोई भी सिटीजन जो है उसको मना नहीं किया जाएगा एक्सेस टू शॉप कि वो हमारे नेबरहुड में शॉप नहीं खोल सकता है. तो इट इज इक्वालिटी कि कोई लाइक यू कैन से कि फ्रॉम कठुआ से आके कोई जम्मू में शॉप नहीं खोल सकता. नो, उसकी शॉप खुल सकती है. पब्लिक रेस्टोरेंट्स खोल सकते हैं. प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट. देन यूज ऑफ वेल्स, टैंक्स, bathing carts, roads, and places of public resorts maintain whole or partly state funds. तो वो कहीं पे भी उसको क्या कर सकता है, यूज कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल किसी और डिस्ट्रिक्ट से आके वो हमारे जम्मू में आके या कठुआ सांबा से आके वो यहाँ पे आके अगर कुछ यूज कर रहा है, कोई वेल यूज कर रहा है, कोई पब्लिक कोई भी थिंग्स को यूज कर रहा है, सो he has a right to do. So the third feature is article 15 shall prevent the state from making any special provision for women and children. So इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो हमें क्या करता है, women और children को क्या करता है, कोई provision नहीं देता है. So fourth feature is nothing in this article or article 29 shall prevent the state from making any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or the scheduled castes and scheduled tribes. So कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं है जो हमें एजुकेशनली बैकवर्ड और सिटीजन्स को, शेड्यूल कास्ट को वहाँ पे प्रोहिबिट करेगा, रोकेगा उनकी फैसिलिटीज के लिए. ओके, so this is about article 15. Now I am going to end up my topic here, and so rest we will continue in our next class. So next topic we will continue afterwards, not now. I'm going to unmute you. Excuse me, ma'am. Yes. I'm not. Excuse me, ma'am. Ma'am. Excuse me, ma'am. Say मैम डॉक्टर भीमराव ने मतलब कि इंस्टीट्यूशन लिखा था या बढ़ाया था? Excuse me, ma'am. Excuse me, ma'am. Excuse me, ma'am. Excuse me, ma'am. say na. Read out. No. Ask any color and enter the machine. Bye bye.